Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज का बहुत ही पावन दिन है, पावन तिथि। आज गौर पूर्णिमा महा महोत्सव है। और जैसे जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था तब उस दिन भी चंद्र ग्रहण था। और आज भी वही तिथि वही है और वही आज जैसे हम जानते चंद्र ग्रहण है। तो बहुत ही मतलब अद्भुत ये कॉम्बिनेशन है। और आज मतलब छुट्टी पे है सब लोगों को। तो आज हम सभी वैष्णव जो उपस्थित है उनके चरणों में दंडवत आपका आशीर्वाद लेते हुए आज हम भागवतम का पाठ करेंगे 2 श्लोक का। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम देख रहे हैं श्लोका स्कंद 3 29 अध्याय श्लोका 33 और 34। और इसका शीर्षक, इस अध्याय का शीर्षक है कपिल मुनि जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो भक्ति सेवा का उल्लेख जो है कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से कर रहे हैं। ये पूरा अध्याय में क्या भक्ति, भक्ति केवल भक्ति नहीं, सेवा, भक्ति सेवा क्या है इसका विस्तार में इस अध्याय में कपिल मुनि जो है माता देवहूति को बता रहे हैं। आज का 33 श्लोका है। तस्मान मया अर्पित आशेष क्रियार्थ आत्मा निरंतरः मय अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम अकर्तु समदर्शनात्। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। Therefore, I do not find a greater person than he who has no interest outside of mine, who therefore engages and dedicates all his activities and all his life, everything unto me without cessation. Purport in this verse, the word Samadarshana means that he no longer has any separate interest. The devotee's interest and the Supreme Personality of God's interest are one. For example, Lord Chaitanya, in the role of a devotee, also preached the same philosophy. He preached that Krishna is a worshipful Lord, the Supreme Personality of Godhead, and that the interest of his pure devotee is same as his own. Sometimes Mayavadi philosophers, due to a poor fund of knowledge, define the word Samadarshanath to mean that a devotee should see himself as one with the Supreme Personality of Godhead. This is foolishness. When one thinks himself one with the Supreme Personality of Godhead, there is no question of serving him. When there is service, there must be a master. Three things must be present for there to be service.
is the master, the servant, and the service. Here it is clearly stated that he who has dedicated his life, all his activities, his mind and his soul, everything, for the satisfaction of the Supreme Lord is considered to be the greatest person. The word akartu means without any sense of proprietorship. Everyone wants to act as a proprietor of his action so that he can enjoy the result. A devotee, however, has no such desire. He acts because the personality of Godhead wants him to act in a particular way. He has no personal motive. When Lord Chaitanya preached Krishna consciousness, it was not with the purpose that people would call him Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Rather, he preached that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and should be worshipped as such. A devotee who is most confidential servant of the Lord never does anything for his personal account, but does everything for the satisfaction of the Supreme Lord. It is clearly stated, therefore, Mai Sanyasta Karmana. The devotee works, but he works for the Supreme. It is also stated, Mai Arpita Atmana. He gives his mind unto me. These are the qualifications of a devotee who, according to this verse, is accepted as the highest of all human beings. फिर अगला श्लोक का कुछ देर बाद पहले इस पे चर्चा करते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी कपिल मुनि बता रहे हैं कि कौन महान भक्त है, तो वही जो जिनका भगवान का जो इच्छा है उसके अलावा और कोई दूसरा इच्छा नहीं है, और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो अपने मन से, अपने काया, अपनी वाचा से भगवान की भक्ति में संलग्न होता है और पूरी अपनी जो अपना पूरा जीवन जो है भगवान के लिए अर्पित करता है। ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए, बट कंप्लीटली ऑल हिज लाइफ, पूरी तरह से। तो भगवत गीता में भी कहते हैं ना, महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति माश्रितः भजते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो वहां पे भी अर्जुन को वही बताते हैं कि अर्जुन तुम महात्मा हो। क्यों? महात्मानस्तु माम पार्था, तुमने किसका आश्रय लिया है? दैवीं प्रकृति आश्रितः। तो भक्ति करने के लिए हमें हमेशा जो है, जो भगवान की जो दैवी प्रकृति, भगवान के जैसे हम जानते हैं दो शक्ति है, बाहिरंगा और अंतरंगा। तो अंतरंगा शक्ति से ही जो है हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बाहिरंगा शक्ति का जब हम आश्रय लेते हैं तो हम भोगी बन जाते हैं, क्योंकि माया देवी का जब हम आश्रय लेते हैं तो वहां पे हम अपने इच्छा अनुसार अपने भोग के लिए हम कार्य करते हैं। तो देवी प्रकृति माश्रिता भजते अनन्य मनसो। और भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन के द्वारा अपने भक्तों को बता रहे हैं कि क्योंकि तुमने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है, तुम क्या कर रहे हो? भजते अनन्य मनसो। तो अनन्यता से अपने मन, काया, वाचा से क्या कर रहे हो? अनन्य मनसो भजताम, मेरी भजन कर रहे हो। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, और तुमको ज्ञान है कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे कपिल मुनि वही जो है माता देवहूति को बता रहे हैं कि समदर्शनात्, समदर्शनात् मतलब जो भक्त है उसको भगवान के इच्छा अनुसार कार्य करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती। ओके, तो यहाँ पे वही चैतन्य महाप्रभु का जो एक शिक्षा है कि आराध्य भगवान यस धाम वृंदावनम। तो ये कुछ जो क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एक भक्त को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद भी हमेशा कहते हैं जो सिद्धांत है, तो सिद्धांत जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम भक्ति में भटकते रहेंगे। कभी हमको लगेगा हाँ कृष्ण भगवान है, कभी लगेगा अन्य भी भगवान, मतलब अन्य देवी देवताओं का आराधना करने से भी मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है। तो शायद, तो जब तक सिद्धांत, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्त न करो आलस, सुदृढ़ ये लागे सुदृढ़ मानस। तो कंक्लूजन हैज टू बी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आराध्य भगवान व्रजेश तन्यस। तो हम गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा में जो भक्ति कर रहे हैं, जैसे कि 4 परंपरा है, तो उसमें हम जो गौड़ीय परंपरा में जो भक्ति कर रहे हैं, हमको एक
चीजें पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है पहला तो हम लोगों के लिए जो हमारे आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनयेश, गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण है, जो गैया चरा रहे हैं, ना कि जो द्वारका में ऐश्वर्य पूर्ण जो द्वारका में महल में रह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द सारे सेवक जो है, 16,008 पटरानियों के साथ जो भगवान ऐश्वर्य का जीवन, वो हमारे आराध्य मतलब हमारे अपना गोल या अपना जो क्या कहते हैं ध्येय क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस, जो ब्रज धाम में जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो गैया चरा रहे हैं, गोपाल गोविंद, हाँ, जो माता यशोदा और नंद महाराज के साथ जो रह रहे हैं, गोपियों के साथ, गोपाल सखाओं के साथ जो लीला कर रहे, वो हमारे आराध्य भगवान है। हाँ, और तद धाम वृंदावन, तो जैसे कहा कि आध्यात्मिक जगत एक बहुत अनलिमिटेड, इट इज 3/4 ऑफ द एंटायर क्रिएशन। भगवान का जो सृष्टि है उसका 3/4 जो है आध्यात्मिक जगत है। तो उसमें अनगिनत अनगिनत जो वैकुंठ धाम, अनेक अनेक, तो उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है? गोलोक वृंदावन। तो वो हमारा धाम, वहां पे हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। आराध्य भवन ब्रज तद धाम वृंदावन, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न यह कल्पिता। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है, तो यहाँ पे प्रभुपाद भी तात्पर्य में कह रहे हैं। तो हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रम्या काचित उपासना ब्रजवधु, ब्रजवधु यानी जो गोपियां है, दैट इज द टॉप मोस्ट वे ऑफ वर्शिप। क्योंकि गोपियों का भाव क्या है? वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, हाँ, उनके हित के बारे में या उनकी सुविधा, कन्वीनियंस। हम लोग क्या भक्ति कैसे करें? कन्वीनियंस। यहाँ पे जो भक्ति जो होती है हित की, जो भागवतम में हमने जब स्टार्टिंग पढ़ा, हित की भक्ति यानी जहाँ पे अपना कन्वीनियंस या अपनी सुविधा को ना सोचते हुए भगवान को क्या चाहिए, हाँ, गुरु क्या कहते हैं। जैसे 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करना है, तो वहां पे हम अगर सोचेंगे कि नींद मेरी पूरी नहीं हुई है, सो ये हम अपनी सुविधा के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो गोपियां हमको क्या सिखाती है? अपनी सुविधा के बारे में ना सोचते हुए भगवान के लिए क्या अच्छा है, भगवान को क्या आनंद देगा। तो इसके वजह से बहुत सारे उनके ऐसे लीलाएं हैं जिसमें दिखाते हैं कि वो केवल और केवल भगवान की सुविधा के लिए कार्य करते थे। इसके वजह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता। और ये सारा ज्ञान हमको कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण। ये सारा प्रमाण जो हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रमाण चाहिए, राइट, हमको शिक्षाएं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जो अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम, ये अपना क्या है? दिस इज अवर क्या कहते हैं, जैसे बाइबल, जैसे हर डॉक्टर का बाइबल होता है, एक एडवोकेट, उनके हर हर किसी को अगर किसी क्षेत्र में प्रगति करनी है तो उनको कुछ किताबें हैं जिसको पढ़ के वो उसमें प्रगति कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस भक्ति मार्ग में अगर हमको प्रगति करना है तो हम जानते हैं कि प्रिलिमिनरी क्या है? भगवत गीता, फिर क्या है सेकेंडरी? श्रीमद् भागवतम, और फिर डॉक्टरेट मतलब हाईएस्ट क्या है? हम गौड़ीय वैष्णव के लिए चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की सारे मतलब लीलाएं और किस तरह से भक्तों के साथ आदान प्रदान। और इससे पहले हमको ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो अमल पुराण है, ये हमको एक्चुअली उस भगवान के बारे में पूरी उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनको क्या, उनके भक्त कौन है, उनको क्या पसंद है, उनके भक्त किस तरह से उनकी भक्ति करते हैं, तो ये सारा जो श्रीमद् भागवतम ने उल्लेख किया हुआ है बहुत विस्तार से। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्तो महा, सब ये सब करके भक्ति में हम क्या प्रयोजन है हमारा? एक तो हम जानते हैं ना संबंध, अभिधेय संबंध प्रयोजन। तो हम ये सारा पढ़ के हमारा प्रयोजन क्या है? हम क्या पाना चाहते हैं? ना कि हमको ना ब्रह्मा बनना है, ना हमको ध्रुव लोक चाहिए, ना ही हमको इस भौतिक जगत में सबसे ऊंची पदवी या ऐश्वर्य या नाम प्रतिष्ठा लाभ, कुछ नहीं हमारा। फिर क्या चाहिए हमको? इतना सारा हम लोग जो प्रोसेस
एंड रिजल्ट हमको क्या चाहिए? प्रेम, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। प्रेम पुमार तो महान। और ये सारा जो किसका मत है, ये कौन बता रहे? चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र धारो न परा। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड चैतन्य रोल ऑफ डिवोटी ऑल्सो प्रीच द सेम फिलोसफी ही प्रीच कृष्णा इज द वर्शिपेबल लॉर्ड, प्योर डिवोटी इज द सेम एज हिज ओन। और यहाँ पे भगवान भी देखिए, भगवान भी जैसे हम जैसे भक्त जो भगवान को चाहिए वही करते हैं, उसी तरह से भगवान भी मतलब ऐसा नहीं कि केवल देख रहे, वो भी उसी तरह से वो भी देखते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। इसके वजह से प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि आप भगवान से अपने जो दिन जो निजी जीवन की जरूरतें मत मांगो। प्रभुपाद हमेशा कहते थे ना, डोंट गो टू द चर्च, वो कहते थे क्रिश्चियन को, डोंट गो टू द चर्च टू आस्क फॉर द डेली ब्रेड। भगवान तो वैसे भी आपको देंगे। तो हमको भी प्रभुपाद वही कहते थे कि भगवान की भक्ति अपनी निजी जीवन की जो जरूरतें है, गाड़ी बंगला, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, हम बहुत सारे इतना हमारे अंदर ये रहते ना कि क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा। जैसे हमारे अभी ये जो कुछ युद्ध भी छिड़ा है, तो हम सोचते कि अरे अभी वहां पे क्या होगा। तो ये सारा जो है भगवान बहुत भगवान सामर्थ्य भगवान के पास इतना है कि वो सारा देखभाल कर सकते हैं। तो हमको भगवान की भक्ति ये सारी चीजों के पूर्ति के लिए नहीं करनी है। भगवान ऐसे भी, जब हम भक्त भी नहीं थे तब भी भगवान ने हमको सब कुछ दिया था, राइट। जब हम भक्ति में नहीं आए थे, ऐसा नहीं कि हम लोग रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए, तब भी भगवान, जब हम भगवान को मतलब हमको पता भी नहीं था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जब हमको पता भी नहीं था तब भी भगवान दे रहे हैं। और अभी भी कितने सारे नास्तिक है जो भगवान को नकारते हैं, कुछ सारे मतलब गाली भी देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का भी भगवान ख्याल रखते हैं कि नहीं? तो आगे, हाँ, उनका जो आगे का जो डेस्टिनेशन है वो बहुत पूरा हो सकता है अपने कर्मों के कारण, लेकिन भगवान उनको नकारते नहीं, उनको जो कुछ देना है। तो फिर हम अगर भक्ति करें तो हमको जो कुछ हमारे लिए सही है, हम जो हमको भक्ति में आगे लेके जाएगा, भगवान डेफिनेटली 100% हमको वो सारी चीजें देंगे। ओके, तो भगवान की भक्ति अहितु की, और भगवान की इच्छा के लिए, जैसे हम भगवान की इच्छा के लिए जब कार्य करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों को क्या क्या जरूरत है, उनको क्या क्या आवश्यकता है, वो हमेशा भगवान सोचते रहते हैं। ओके, तो sometimes Mayavadi philosopher, due to poor fund of knowledge, define the word samsara darshana, samadarshana, to mean that devotee should see himself one with the supreme personality of Godhead. This is foolishness. तो यहाँ पे प्रभुपाद एक सुंदर वाक्य कह रहे कि ये क्या मूर्खता है कि जो मायावादी है, तो वो लोग हर एक जो शब्द होता है ना उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से, इसलिए हमेशा प्रभुपाद कहते थे एज इट इज, मैंने जो दिया है, जो भगवान कह रहे हैं वो दिया है। और बाकी सारे मतलब जो अपने अपने मनो मनोवृत्ति या अपने मन के वेग के अनुसार, राइट, जैसे मायावादी वो लोग क्या करते हैं, हर शब्द को इस तरह से अपना जो क्या कहते हैं अपने मन में क्या चल रहा है उसको बताने के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी दिया है, इट इज एज इट इज, भगवान क्या कहना चाहते हैं मैंने वो दिया है। तो मायावादी यहाँ क्या समदर्शनाथ यानी क्या, मतलब हमको भी भगवान क्या, वो हमको बताते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि देखो, भगवान खुद कह रहे समदर्शनाथ, मतलब अपने आप को भगवान के जैसे ही मानो। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई अपने आप को भगवान जैसे मानेगा तो फिर वो भगवान को सेवा क्यों करेगा, राइट। मैं भी भगवान हूँ, राइट, मैं भी भगवान के समान हूँ, तो मुझे भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है, ऐसा ही एक धारणा बनेगी, राइट। तो भगवान प्रभुपाद कहता है कि दैट कि ये जो है मूर्खता है। तो समदर्शनाथ यानी मतलब भगवान का जो इच्छा और अपना इच्छा वो समान होना, मतलब भगवान हमको वननेस इन व्हाट कृष्णा डिजायर्स, मतलब भगवान की जो इच्छाएं है उसके इच्छाओं के साथ अपने आप को समन्वय करना, उसका अर्थ है समदर्शनाथ, राइट। तो भगवान चाहते हैं कि हम अहित की प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करें और उसी को अपना ध्येय बनाना, तो ये है समदर्शनाथ, राइट।
तो ऐसा नहीं कि भगवान चाहते हम भक्त बने और हम सोचते हैं कि भक्त तो हम बनेंगे लेकिन अपने हिसाब से बनेंगे, राइट। अपने हिसाब से 16 माला नहीं, मैं तो केवल 4 माला करूंगा। प्रसाद में जब भी मंदिर जाऊंगा प्रसाद खाऊंगा, लेकिन बाहर जब रहूंगा तो बिना भगवान को भोग लगाए मैं अर्पण करूंगा। मुझे वो क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। पकाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ, इतना टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस वगैरह जाना है। तो इस तरह से अगर सोचना है, मतलब हम लोग जो भगवान के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करे। लेकिन भक्त क्या है, कितनी भी इनकन्वीनियंस, कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो अपने टाइम को एडजस्ट करता है। वो जल्दी उठेगा, अच्छा मुझे 16 माला करना है, मुझे जल्दी उठना है, रसोई बना के भगवान को भोग लगाना है, वो जल्दी करेगा। आज गौर पूर्णिमा है, आज पूरा दिन उपवास है, चलेगा, मैं आज उपवास रखूंगा। आज ग्रहण है, 7:30 मतलब जो ग्रहण का जब समय होने के बाद नहा धो के शुद्ध होके फिर पका के चलेगा। तो ये नहीं सोचेगा अरे भक्ति मतलब कितना रिस्ट्रिक्शन है, कितना सारा, तो मैं भक्ति तो करूंगा लेकिन अपने हिसाब से। देन दैट इज नॉट समदर्शना। समदर्शनाथ मतलब हर एक चीज, हाँ हर एक चीज जो करनी है वो मैं करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। और यहाँ पे वही लिखते हैं कि when there is service there must be, जब भी सर्विस के लिए प्रभुपाद 3 things must be present for that to be service। एक है स्वामी, दूसरा है सेवक, और तीसरी है सेवा, राइट। तो स्वामी होना जरूर है, स्वामी का सेवा करने के लिए सेवक, और सेवक क्या करेगा, स्वामी की सेवा। तो here it is clearly stated that he who has dedicated his life for all his activities, his mind and soul, everything for the satisfaction of the Supreme Lord is considered to be the greatest person। तो हम इवन अगर गोवर्धन लीला देखेंगे, गोवर्धन लीला, तो जब कृष्ण ने कहा अपने पिता नंद महाराज से कि हमको तो जो भी हमें जो चाहिए, हम तो क्या ग्वाल बाल है, ग्वाल है, मतलब यह कावड़ मैन, अपना कम्युनिटी, कावड़ कम्युनिटी। तो हमको जो कुछ जरूरतें है वो तो गोवर्धन दे रहा है हमको। इंद्र तो अपने क्या कहते हैं ड्यूटी अनुसार वर्षा करता है वो। तो हम लोग इंद्र की पूजा ना करेंगे और गोवर्धन की। तो जैसे कृष्ण ने ये प्रस्ताव रखा, तो नंद महाराज ने कहा, क्या कहा कि हाँ तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग हर हर साल कर रहे हैं इंद्र पूजा, तो ये करने के बाद गोवर्धन की भी पूजा करेंगे हम लोग, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन फिर कृष्ण ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करना है, इंद्र पूजा करो फिर वापस गोवर्धन पूजा। अभी जब सब कुछ रेडी है, तो इसी को हम गोवर्धन पूजा में इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही भगवान ने प्रस्ताव रखा, तो फिर नंद महाराज मान गए, जितने ब्रजवासी थे सब मान गए, राइट। और उसके बाद जब इंद्र ने अपना कोप दिखाया, वर्षा की, तब भी किसी ने कृष्ण को मतलब उंगली नहीं उठाई। भागवत में कहीं ये नहीं आता कि कृष्णा तुम्हारे वजह से देखो ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे इसको कैसे समन्वय, तो हम भक्ति मार्ग में भी जब आएंगे बहुत सारी कठिनाई आएंगे, हमको हमारे परिवारजनों से भी शायद सपोर्ट ना मिले, हमारे दोस्त वगैरह जो मित्र वगैरह वो कहेंगे कि अरे भक्ति में आने के बाद तो कितना बदल गया है। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन हम लोग कभी भी कृष्ण मतलब भक्ति में हम लोग कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं, या फिर हम किसी इस प्रोसेस में दोष नहीं देखेंगे। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, जब जो ब्राह्मण पत्नियां थी, जैसे उनको पता चला कि कृष्ण और बलराम वन में आए हैं और उनको भूख लगी है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने जो ब्राह्मण जिनके लिए यज्ञ जो चल रहा था, यज्ञ के लिए जो उन्होंने सब सामग्री सारा जो भोग बनाया था, इमीडिएटली जैसे वो गोपों ने कहा कि कृष्ण बलराम वन में है और उनको भूख लगी है, तो तुरंत उन्होंने सारा जो यज्ञ के लिए जो उन्होंने सामग्री या जो भोग बनाया था उसको तुरंत लेके कहाँ गए, कृष्ण के पास चले गए। तो इस तरह से जो अपना पूरा जीवन अपना तन मन धन, यहाँ पे प्रभुपाद ऑल हिज एक्टिविटीज, उनके सारे कार्य, अपना मन, यहाँ के अपना पूरा जीवन जो भगवान के संतुष्टि के लिए जो लगाता है,
वही सबसे महान व्यक्ति है। तो इसके वजह से ये जो शब्द यहाँ पे अ- अकर्तु, अकर्तु मतलब बिना कोई स्वामित्व के, तो इस तरह से जो हम कार्य करते हैं ना, तो उस कार्य में ये कार्य दिव्य हो जाते हैं। हाँ, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें तो या तो हमको कर्म लगता है, राइट, पाप कर्म या पुण्य कर्म। पाप कर्म करेंगे तो बहुत अपना जो अ, अवस्था जो बहुत खराब हो जाती है, और पुण्य करेंगे तो हमको भोग, मतलब आगे चल के ऐश्वर्य मिल सकता है, नाम प्रतिष्ठा लाभ। तो ये दो, या तो पुण्य या फिर पाप। लेकिन अकर्तु, अकर्तु यानी ऐसे कार्य जो दिव्य है, इट इज ट्रांसेंडेंटल। हाँ, जिसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत कार्य। तो ऐसे जब दिव्य कार्य करेंगे तो ना हमको पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, उसमें हमको भगवान की जो है कृपा मिलेगी। और ऐसी कृपा इकट्ठा कर करके भगवान की क्या होगा, हम शुद्ध भक्त बनेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर कार्य दिव्य स्तर पे करें, क्योंकि हर कोई सोचता है कि शुद्ध भक्त बनना है, लेकिन शुद्ध भक्त बनने के लिए हमको कार्य भी दिव्य स्तर पे करने पड़ेंगे। ये तो ज्यादातर भक्ति में भी जो हम बहुत सारे सेवाएं वगैरह करते हैं, उसमें क्योंकि वो मन क्या कहते हैं, मन में अभी भी यहाँ पे क्या कहते हैं आसक्ति होने के कारण, और कभी कभी कार्य करने के बाद हमको थोड़ा क्या कहते हैं अभिमान भी होता है कि देखो ये मैंने कार्य किया, बहुत अच्छी तरह से किया, सब लोगों को पसंद आया। तो वो अभिमान जब आता है तो क्या होता है, तो वो दिव्य स्तर पे नहीं होता। तो भगवान क्या करते, चलो इसने अच्छा कार्य किया है तो इसको इस कार्य के बदले में मैं तो पुण्य दे देता हूँ। तो फिर क्या होगा, फिर उस पुण्य को भोगने के लिए हमको या तो इसी जन्म में मिलेगा या फिर वापस अगला जन्म लेके आना पड़ेगा। तो कभी कभी भक्ति में भी कार्य करने के बाद अगर हमको अभिमान आता है या फिर हम उसके स्वामी बनने का इच्छा, हमको इच्छा अगर प्रकट होती है, तो फिर वो दिव्य, भले ही आपने भगवान की सेवा की, जन्माष्टमी में सेवा की या गौर पूर्णिमा में सेवा की, भगवान की सेवा की, लेकिन क्योंकि आप उस सेवा के बारे में सोच रहे हो, आपको हो सकता है बहुत प्रशंसा मिली और आपको थोड़ा अभिमान हुआ, तो फिर वो सेवा क्या होगी, वो फिर सेवा दिव्य स्तर पे नहीं होगी। देन उसका आपको लाभ मिलेगा, पुण्य लाभ। तो फिर इट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल। तो इसलिए हमको अहितु की अप्रतिहता जो कहा गया है, अहितु की सेवा करना बिना बिना किसी हेतु के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड अकर्तु मीन्स विदाउट एनी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हमको एक्चुअली अगर प्रभुपाद की अगर हम किताबें रोज पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे प्रभुपाद के, बार बार यही बताते हैं कि हम लोग जो है केवल क्या है, एक निमित्त मात्र भव सव्य साचन, हम केवल निमित्त है। तो ये जो सारा कार्य जो हो रहा है, इवन जब प्रभुपाद ने आ, ये सारा जो संस्था स्थापना करने के बाद भी प्रभुपाद ने कभी भी क्या कहते हैं, उनको अभिमान नहीं हुआ। प्रभुपाद वाज नेवर प्राउड। कभी उन्होंने क्या कहते हैं उसका श्रेय कभी नहीं लिया, या तो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया या अपने गुरु को दिया। और कभी भी प्रभुपाद मतलब ऐसा, मतलब कहते थे ना, हिज हेड वाज नेवर, मतलब उनका जो कहते हैं ना सर जो था, हमेशा उनके पैर हमेशा जमीन पे थे। वो ऐसा उड़ नहीं रहे थे, देखो मैंने क्या, मतलब 11 साल में मैंने क्या हासिल किया, कोई नहीं कर पाया, राइट। क्योंकि उनके उनके पहले उनके बहुत सारे गुरु भाई जो है, उन्होंने भी ट्राई किया, वो भी गए थे पाश्चात्य देश में, लेकिन सब कोई सफल नहीं हुआ। केवल प्रभुपाद जो है जिनको सफलता प्राप्त हुई, लेकिन सफलता को भी वो किसके चरणों में रखते थे, अपने गुरु के, भगवान के और अपने शिष्यों के। और यही कारण है कि जो है प्रभुपाद इतना बड़ा आंदोलन को खड़ा कर पाए। और उनके शिष्य भी जो है प्रभुपाद के ही मतलब नक्शे कदम पे। तो इस तरह से हमको कार्य करना है विदाउट एनी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप।
अभी भी बहुत सारे मतलब ये जो आंदोलन बढ़ रहा है, बहुत सारे भक्तों का इसमें योगदान है। लेकिन अगर जो इस योगदान में श्रेय को अपने ही पास रखेंगे या सोचेंगे कि मैंने किया है, तो फिर क्या होगा, उस कार्य के भगवान तो प्रसन्न होंगे, लेकिन क्योंकि आप उसका श्रेय अपने आप को देना चाहते हो, तो भगवान क्या करेंगे, उस कार्य करने के हेतु, मतलब इन रिटर्न फॉर दैट ग्रेट सर्विस, कृष्णा विल गिव यू पुण्य। तो भगवान बोलेंगे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप इतना अच्छा प्रचार कर रहे हो, इतने सारे भक्त बना रहे हो, इतना सारा मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन आपके मन में क्योंकि उसको उस श्रेय को श्रेय या उस कार्य का स्वामी बनने का अभी भी इच्छा है, तो अभी नो प्रॉब्लम। सो इंस्टेड ऑफ डिवोशनल सर्विस आई विल गिव यू पुण्य, पुण्य फल, आपको अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा। हाँ, आप अच्छा मतलब और प्रचार करने के लिए और ज्यादा धन मैं देता हूँ आपको, और आपको मतलब नाम देता हूँ, प्रतिष्ठा लाभ मैं देता हूँ। लेकिन अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए, ये सारा कार्य करने के बाद आपको सही में शुद्ध भक्ति चाहिए, आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, देन यू विल हैव टू सरेंडर ऑल दिस। इसका क्रेडिट आप बिना लिए अपने गुरु को दीजिए, फिर गुरु अपने गुरु को, ऐसा करते करते मुझ तक पहुंचेगा। हाँ? तो अगर ऐसा करेंगे तो भगवान हमारा ये सारा जो हम कर रहे हैं कार्य, उसके बदले में हमको शुद्ध भक्ति देंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप भक्ति में बहुत सारा सेवा कर रहे हैं, इसका गारंटी नहीं है कि आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी। शुद्ध भक्ति आपको तभी मिलेगी व्हेन यू डू ऑल दिस सेवा अहितु की, अंडरस्टैंडिंग कि ये सारा कृष्ण कर रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। अगर ऐसा हमारा अभी तक समझ नहीं है, then we will accumulate lot of punya, lot of piety for all the great service we are doing in Krishna consciousness. And वो piety का क्या होगा, या तो ये जन्म में मिला तो यहाँ ये जन्म में भोग करेंगे, या फिर अगेन विल टेक अनदर बॉडी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अगला जन्म अगर मिला और बहुत हमको ऐश्वर्य मिला, तब कोई गारंटी नहीं कि हम भक्ति कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि जब किसी को जब भक्ति में वो भी सफल नहीं होता, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करता, तो क्या बोलते हैं, अगला जन्म क्या होगा, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान समति श्रीमताम शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। श्रीमताम, श्रीमताम मतलब संस्कृत में श्रीमत यानी जैसे बड़े धनी परिवार, जैसे अंबानी अडानी, ऐसे बहुत बड़े धनी परिवार है ना, उसमें आप जन्म लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ऐसे बड़े बड़े धनी परिवार में जब हम जन्म लेते हैं, तो कोई स्ट्रगल है ही नहीं लाइफ में। सब अपने मतलब कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून या फिर गोल्डन स्पून, बचपन से आपका चम्मच जो है खाना खा रहे की थाली में, तो कोई स्ट्रगल नहीं है। तो जीवन में जब स्ट्रगल नहीं है, तो भगवान को आप क्यों मतलब एकदम दिल से पुकारेंगे। हाँ, कुंती महारानी कहते हैं ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एद मान मदपुमान नेवार हत्या विदातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरा। तो जब जन्म अच्छा है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है, तो ये सारे जब आपके पास उपलब्धियां हैं, तो भगवान मतलब आपको भगवान पता है कृष्ण है, लेकिन उसकी और उनके पास जाना या उनको पुकारना वो एक फॉर्मेलिटी होगा, आप हृदय से कभी नहीं पुकारेंगे। क्योंकि कुंती महारानी कहते कि जब जीवन में विकट परिस्थिति आती है, आप एकदम पूरी तरह से चारों कोने जब चित्त होते ना, आपने सुना होगा ना, चारों कोने चित्त होना, यानी एवरी हर कोने से आपके ऊपर माया देवी मतलब कष्टों का बारिश कर रहे हैं, तब जो है हम एक्चुअली भगवान को सही में हृदय से पुकारते हैं, और तब हमको पता चलता है कि ये भौतिक जगत सही में दुक्कालय अशाश्वतम है। तो इसके वजह से पुण्य अर्जित करना ये एक उसका डिफॉल्ट मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो अगर बहुत सारा पुण्य हमने अर्जित किया भक्ति करते करते, तो इंस्टेड ऑफ डिवोशनल सर्विस वी माइट गेट ऑपुलेंस। एंड अगर ऑपुलेंस मिल गया हमको जीवन में, तो ऑपुलेंस हमको एकदम कॉम्प्लेसेंट भक्त बनाएगा, विल बिकम अ रिलैक्स्ड डिवोटी। तो इसके वजह से जो है हमको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो when Lord Chaitanya preached Krishna consciousness, it was not with the purpose of people would call him Krishna। तो और भगवान यहाँ स्वयं अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि
उनको मतलब वो स्वयं भगवान थे, लेकिन वो एकदम केवल एक साधारण भक्त की तरह उनका व्यवहार था। और जब भी कोई बोलते ना कृष्ण कृष्ण, वो अपने आप कानों में उंगली डालते और कहते बंद करो। तो इस तरह से तो हमको भी तो भगवान क्या सिखा रहे हैं कि आप कितने भी अच्छा सेवा क्यों ना करो, एक्चुअली ये भगवान का दिया हुआ एक ऐश्वर्य है। तो कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा मैनेज कर सकता है, किसी के अंदर बहुत धैर्य है, राइट। प्रभुपाद एट द एज ऑफ 65 कितना धैर्य चाहिए, राइट। हम लोगों को एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने के पहले हम इतना बैग पैक करते हैं, बैंक बैलेंस चेक करते हैं, एटीएम कार्ड चल रहा है कि नहीं चेक करते हैं। वहां पे एटलीस्ट 10 लोगों का हम फोन नंबर लेते हैं, इनकेस अगर कुछ हो गया तो इसको इसको कांटेक्ट करना है। एक स्टेट मतलब गोवा से अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं पहले सबको बोलो, एक तो हमारे गोपी मनोहर प्रभु जी है उनको कॉल करूंगा, या सत्यराज प्रभु मैं आ रहा हूँ, अगर कहीं पता नहीं मिल रहा तो थोड़ा हेल्प करना, कहाँ से कैसे जाना है थोड़ा बताना, राइट। इतना सारा। और प्रभुपाद मतलब 7 समंदर पार एट द एज ऑफ 65, 40 रुपए लेके, तो कितना धैर्य चाहिए। तो ये सारा जो कौन दे रहा है, भगवान की ही एक्चुअली एक एम्पावरमेंट है। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली बाय द विल ऑफ कृष्णा। तो ये हमको याद रखना है। डिवोटी इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, नेवर डज एनीथिंग फॉर हिज पर्सनल अकाउंट बट डज एवरीथिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ओके। एंड मैं संन्यास the devotee works for the supreme. So and my arpita mana, he gives his mind unto me. These are the qualification of devotee who according to these words is accepted as the highest of all human beings. तो हर चीज जो हम भगवान को भगवान के लिए करते हैं, ये जानते हुए कि ये सब भगवान मुझसे करा रहे हैं, आई एम जस्ट निमित्त। तो ऐसा हमारा हमेशा मनोरथ होना चाहिए। आप कितना भी ज्यादा सेवा करके बहुत सारा सफलता प्राप्त कर रहे, लेकिन इन द एंड आपको पता होना चाहिए कि मैं केवल एक निमित्त था, आई वॉज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। कृष्णा ने मेरे द्वारा ये सारा कार्य करवाया, राइट। आप बहुत अच्छा गाते हो, अंडरस्टैंड, कृष्णा इज मेकिंग मी सिंग थ्रू हिज, हैज एम्पावर्ड मी टू सिंग। तो कोई अगर कितना भी आपकी प्रशंसा करे तो आपको भले ही आप उसको ले, लेकिन तुरंत गुरु को दे, और अंदर ही अंदर आप हमेशा याद रखे कृष्णा थैंक यू वेरी मच, आपने सब कराया। वो आता है ना एक अच्छा भजन, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो इवन कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, जब पूछा गया कि किसने एक्चुअली सबसे अच्छी लड़ाई की, पता नहीं, पूरा युद्ध। तो उसने देखा, जहां तक मैंने देखा, भगवान का सुदर्शन चक्र जो था पूरा पूरे 18 दिन वही जो है खेल। हम भक्ति में भी जो भी आ रहे हैं या कुछ, इट इज जस्ट कृष्णास ग्रेस, इट इज द ग्रेस ऑफ अवर गुरु, ग्रेस ऑफ, और उन वो जो हमको एम्पावरमेंट बैठ के बोल रहा हूँ, इट इज नथिंग बट द ग्रेस एंड एम्पावरमेंट ऑफ कृष्णा। कृष्णा जिस दिन वो ले लेंगे, तो फिर जैसे हम जानते हैं अर्जुन जिसको कुरुक्षेत्र का श्रेय मिला युद्ध का, और जब भगवान चले गए अपने धाम में, तब वो उनके 16,108 पत्नियों को भी बचा नहीं पाए। कुछ निम्न जो लकड़ी लेके जो थोड़े बहुत जो व्यक्ति आते हैं, वो कृष्ण को आई मीन अर्जुन को हरा देते हैं। और तब अर्जुन इसके ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, क्या मैं वही अर्जुन हूँ जो कुरुक्षेत्र में बड़ा योद्धा कहलाया? क्या ये वही गांडीव है जिससे मैंने सबका प्रहार किया? अब फिर वो कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है, वो जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ, क्योंकि मेरे साथ कौन थे? कृष्ण थे। तो हमेशा याद रखना है हमको। तो हम जो कुछ भी इस जीवन में कर पा रहे हैं या हो पा रहा है, भले ही आप भक्त है नहीं है, ये सब और सब केवल एक, इसकी एक सबसे मेन कारण है, वो है भगवान का सैंक्शन।
बिकॉज लॉर्ड इज सैंक्शनिंग, बिकॉज लॉर्ड्स ग्रेस इज देयर, लॉर्ड का एम्पावरमेंट है, हम ये सब कर पा रहे हैं। अन्यथा हम लोग कहते हैं ना बहुत मतलब हम लोग किसी चीज को कर नहीं पाएंगे, राइट। तो अब हम आगे चल के देखते हैं 30 श्लोका। तो यहाँ पे वही कपिल मुनि बता रहे हैं। So therefore, I do not find a greater person than one who has no interest outside of mine, and who therefore engages and dictates all his activities and all his life, everything unto me without cessation. फिर आगे कहते हैं 31 श्लोका, मनसैतानि भूतानि प्रणमेत् बहु मानयम् ईश्वरो जीव कलाय प्रविष्टो भगवान इति. Such a perfect devotee offers respect to every living entity because he is under the firm conviction that the Supreme Person of Godhead has entered the body of every living entity as a super soul or the controller. तो ये अब अगर आप देखेंगे बार बार जो है कपिल मुनि वापस देखिए, अभी यहाँ पे भक्त का महानता बताने के बाद वापस वही चीज, अभी हमने काफी सारे श्लोक पढ़े हैं, बार बार कपिल मुनि वही बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है या जो अच्छा भक्त है वो हमेशा हर एक जीव में मुझे परमात्मा स्वरूप मेरा दर्शन करता है, एंड ही रिस्पेक्ट्स, ऑफर रिस्पेक्ट तो ये मतलब हर मतलब घूम फिर के वही बार बार दोहरा रहे हैं। तो एक्चुअली कपिल मुनि को पता है कि हम जो जीव है इस भौतिक जगत के जीव जो है हमारे अंदर अहंकार बहुत है क्योंकि किसी को मान देना, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हमको अहंकार रहित होना आवश्यकता है। बट ही नोज दैट हमारे अंदर अहंकार बहुत है, तो इसके वजह से बार बार वो हमारे अहंकार को दूर करने के लिए इस चीज को दोहरा रहे हैं। तो परफेक्ट डिवोटी एज डिस्क्राइब्ड डज नॉट make the supreme person of Godhead, Paramatma has entered the body of every living entity. Every living entity has become the supreme person of Godhead. तो ये भी हमको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि भगवान हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति भी भगवान के तुल्य है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्। तो भगवान के जैसे मतलब कोई मतलब भगवान के ऊपर थोड़ा उनके बराबर भी कोई नहीं है। ओके, has become, this is foolishness. Suppose a person enters into a room, that does not mean that the room has become the person. So similarly, that the Supreme Personality Lord has entered in each of the 84 lakh species of material body does not mean that each of these bodies has become Supreme Lord. Because the Supreme Lord is present, however, a pure devotee accepts each body as a temple of the Lord, and since the devotee offers respect to such temple in full knowledge, he gives respect to every living entity in relationship with the Lord. तो ये सुंदर वाक्य प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि भगवान हर एक देह में परमात्मा रूप स्वरूप है, तो वो हर एक देह भगवान के मंदिर के बराबर है। तो सोचिए, हम लोग ने कभी सोचा है क्या किसी व्यक्ति को देख के कि हम मतलब एक मंदिर की तुलना कभी नहीं ना। अगर कोई हमको व्यक्ति पसंद है, हम फिर भी उस व्यक्ति का मतलब चरित्र या उसका जो हमको गुण या जो उसके अंदर गुण है उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं, और फिर जो हमको पसंद नहीं है उसके बारे में हम नकारात्मक हमारी सोच होती है। लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि इस व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा रूप स्वरूप है, तो ये व्यक्ति का जो देह है वो भी एक मंदिर। तो केवल देखो शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त इस तरह से उल्लेख कर सकते हैं। हम ज्यादा से देखते हैं कि भौतिक व्यक्ति या भौतिकवादी है या भक्त है, लेकिन कभी भी मतलब इवन ये अभी पढ़ने के बाद ही मतलब कभी भी इवन हम जब अपने गुरु को देखते थे हमने उनको दंडवत किया होगा, प्रणाम किया होगा, लेकिन कभी भी इवन गुरु महाराज अपने गुरु या प्रभुपाद को देख के मतलब ये भी भगवान का मंदिर है इस तरह का कभी भी हमारे अंदर सोच नहीं आई होगी। Because the Supreme Lord is present, however, the period accept the body, each body as the temple of the Lord. And since the devotee offers respect to such temple in full knowledge, he gives respect to every living creation. Mayavadi philosophers wrongly think that because the Supreme Person has entered the body of a poor man, the Supreme Lord has become Daridra Narayan. तो ये पता नहीं वाक्य कैसे आया दरिद्र नारायण। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि मायावादी उनका क्या सोच है,
जब भगवान परमात्मा स्वरूप किसी एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के हृदय में जाते हैं, तो फिर वो भगवान जो है क्या बन जाते हैं? दरिद्र नारायण। These are all blasphemous statements of atheists and non-devotees. तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये एक तरह से भगवान को गाली देने के बराबर है। तो भगवान के बारे में ऐसा नहीं सोचना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कपिल मुनि वापस बार बार दोहरा रहे हैं, हमको हर एक जीव को सम्मान देना है। अमान मान देना कि सदा हरि। तो ये जब एक्चुअली हम हमारे जीवन में उतारेंगे इन प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि प्रत्येक जीव को जब हम सम्मान देना शुरू करेंगे, भले ही वो भक्त है या भक्त नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान परमात्मा रूप स्वरूप है, तो इट इज माय ड्यूटी, मतलब एक मेरा कर्तव्य है कि आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। तो इस तरह से जब हम सोच के कुछ नहीं तो एटलीस्ट हरे कृष्णा, राइट, काफी लोग हम देखते हैं ना, जब हमको मिलते हैं तो हाय हेलो, तो हम उनको हरे कृष्णा भी अगर बोलते हैं और बिना किसी, और एक है कि लाइफ में हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, ना कि जज करना है। ऑब्जर्व करने से क्या होता है, हम लोग लोगों को समझ पाते हैं, लेकिन जज करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जो अपनी धारणा बना लेते हैं। देखो प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए, उन्होंने जज नहीं किया, ही ऑब्जर्व यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है, ये लोग ऐसे क्यों बने हैं। तो प्रभुपाद एनालाइज एंड ऑब्जर्व, उन्होंने जाके जज नहीं किया, अरे ये लोग तो सारे नशेड़ी है, यहाँ का पूरा कल्चर मतलब सबसे निम्न स्तर का, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, नहीं। प्रभुपाद ऑब्जर्व and then out of compassion he started giving Krishna consciousness to them। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली जज करते हैं। तो जब हम जज करते हैं देन वी व्हाट, उस व्यक्ति के अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत चांस है, थोड़ा बहुत जो स्पार्क है, क्योंकि प्रभुपाद ने तो कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हर एक जीव के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य को भी नए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो एवरी लिविंग एंटिटी ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस डिफॉल्ट सेटिंग है। अभी वो हमारे अंदर है कि किस तरह से हम उसको उजागर कर सकते हैं। तो हम तभी उजागर कर सकते हैं व्हेन वी स्टॉप जजिंग एंड व्हेन वी स्टार्ट सीइंग कि किस तरह से इसका वो जो स्पार्क है उसको प्रज्वलित किया जाए। तो यही है एक्चुअली शुद्ध वैष्णव। और क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव, ही इज ट्राइंग टू, क्या बोलते, क्रिएट अ ह्यूज फायर आउट ऑफ द स्पार्क। वो कभी भी जज नहीं करता, इसके वजह से वो हमेशा अन्यों को मान सम्मान दे सकता है। लेकिन अगर हम जो केवल जज करेंगे, देन अगर आप जज करोगे तो हमको केवल खामियां दिखाई देंगे। तो पर्सन हु जजेस विल ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स। तो ये एक शुद्ध भक्त और एक साधारण व्यक्ति का आप डिफरेंस देख सकते हैं। एंड तो इसके वजह से हमको भी जो प्रभुपाद ने जो इतना क्या कहते हैं, आउट ऑफ इतना करुणा के साथ ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, कैसे कैसे मतलब हम सोच भी नहीं सकते, जीवों का उद्धार किया, उनका अंदर का जो कृष्ण भावनामृत का अग्नि को प्रज्वलित किया। और वो भी मान सम्मान दे के। प्रभुपाद ने हमेशा जब वो पाश्चात्य देश में गए ना, उन्होंने कभी भी दुर्व्यवहार या उनको नहीं बताया कि तुम लोग कितने गिरे हुए हो, ऐसा कुछ नहीं। उनको मान सम्मान देते हुए, मान सम्मान देते हुए। और जब प्रभुपाद पहली बार गए थे, वो मतलब जैसे अभी हम लोग कहेंगे ना झोपड़पट्टी जैसे एरिया, तो बाउरी जो है ना अमेरिका में जहाँ पे पहले रह रहे थे, इट इज लाइक द मोस्ट, सबसे एकदम जैसे झोपड़पट्टी एरिया है ना, जैसे अमेरिका की, ऐसे एरिया में रहते थे वो। तो प्रभुपाद फिर भी उसको सहन किया उन्होंने। तो सारा सहन करते हुए ऐसे एरिया में रहते हुए लक्ष्य से कभी बिना चुके। और हर जीव में उन्होंने, जैसे यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं, उन्होंने देखा कि हर कोई कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का अंश है, परमात्मा स्वरूप उनके है, हर कोई कृष्ण भावनामृत बन सकता है। यही उनके अंदर जो करुणा थी, जो इस करुणा के साथ जब वो आदान प्रदान करने लगे, तब उन्होंने हर किसी के हृदय को छुआ। और उस तरह से जो उनके जो जो स्टार्टिंग के जो भक्त है, उन्होंने अपने आप को समर्पण किया। तो व्हेन वी टच, और
ये सारा करने के लिए हमको जो है नीचे आना पड़ता है। वी कैनॉट जस्ट सिट एंड ऑर्डर। जब हम ऑर्डर करेंगे और भक्त बनेंगे ऐसा नहीं होगा। सही में अगर आपको लोगों के हृदय को छूना है, उनके अंदर का वो कृष्ण भावना में जागृत करना है, तो विल हैव टू गो एट देयर लेवल, उनके स्तर पे जाके उनको उठाना पड़ेगा। एंड तब जो लोग हैं आपको शरणागति होंगे, जो प्रभुपाद ने किया। और ये सब जो यही हमको जो है कपिल मुनि यहाँ पे बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको गौर पूर्णिमा की और एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।